بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 65 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس درس کا عنوان مفعول بھی ہے. ہم نے سابقہ درس میں بھی مفعول بھی کے بارے میں کافی بحث کی. مفعول بھی وہ ایسا مفعول ہے، مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، اور اس کے مختلف مباحث ہم نے سابق درس میں بیان کیا. آج ہم مفعول بھی کے بارے میں یہ بحث کریں گے کہ اس کا مفعول بھی کے فعل کیا ہوتا ہے، یعنی متى یکون للفعل مفعول بھی. مفعول بھی کیسا ہوتا ہے، مفعول بھی کا فعل کیسا ہوتا ہے؟ آیا ہر فعل سے مفعول بھی بنتا ہے، یا کوئی خاص فعل ہے جس سے مفعول بھی جس کے لیے ہوتا ہے؟ ہر فعل کے لیے مفعول بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ فعل جب متعدی ہوتا ہے تو اس کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے. فعل لازم کے لیے مفعول بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہی آپ کو بیان کرتا ہے کہ یکون للفعل مفعول بھی متى کان متعدیا. تو مفعول بھی فعل کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے جب وہ فعل متعدی ہو. جیسے اس مثال میں دیکھیں، سب الساقی ماء. اس میں سبہ کیا ہے؟ فعل ہے. یہ فعل متعدی ہے. تو ساقی نے ڈالا، کیا ڈالا؟ ماء، پانی کو ڈالا. تو ساقی نے پانی کو ڈالا، تو یہ ماء کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. اور اس میں ایک فائدہ بیان کرتے ہیں، اور یہ کہ جب مفعول بھی حذف کیا جائے، جب کہ اس کا غرض جو ہے اس اثبات فعل اس کے فاعل کے لیے ہو، فاعل کو یعنی فعل فاعل کو چاہتا ہو بس، اور مفعول بھی کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، یعنی کوئی تعلق نہ ہو مفعول بھی کے ساتھ. تو اس صورت میں ایسے جو متعدی فعل ہے، اس متعدی فعل کو نازل منزلے فعل لازم کے قرار دیتے ہیں. ہم فعل لازم کی طرح قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے فقط فاعل لے کے آتے ہیں، مفعول کو ذکر نہیں کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے مفعول کو اصلا فرض نہیں کرتے ہیں. تو یہ کبھی ہوتا ہے. اب دیکھو، اذا حذف المفعول بھی، گاہ اوقات مفعول بھی کو حذف کیا جاتا ہے، اور وکان الغرض اثبات الفعل لفاعلہ، چونکہ وہاں پر غرض اور غایت جو ہے فعل کے لیے، فعل کا اثبات ہے کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. فعل فاعل کے لیے ثابت ہے، یہی غرض ہوتا ہے. بس اس کا مدعا جو ہے وہ فاعل ہے، فاعل حاصل ہوا، بس یہی کافی ہے. من غیر تعلقہ بالمفعول، یعنی مفعول کے بارے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا ہے مفعول بھی کو ذکر کرے، بلکہ فاعل کو ذکر کرنا، فاعل کو بیان کرنا، یہی غرض اس کے ساتھ اس فاعل کے اثبات کے بارے میں ہے. تو اس صورت میں نزل المتعدی منزلۃ الفعل اللازمی، اس وقت اس فعل متعدی کو نازل منزلے فعل لازم کے قرار دیا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے فعل لازم کا فقط فاعل ہوتا ہے اور مفعول بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا تو اصالتاً نہیں ہوتا ہے، لیکن اس فعل کا جو کہ متعدی ہے، لیکن اس کے فاعل کو ذکر کرتے ہیں، مفعول کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اس کو حذف کرتے ہیں. فلم یقدر لہ مفعول، گویا اس کے لیے مفعول فرض ہی نہیں کرتے ہیں، فرض ہی نہیں کیا جاتا ہے مفعول کو، مفعول ہونے کو فرض نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ جیسے مثلا اس مثال میں نحو ہوا ینظم، یعنی وہ منظم ہے. دیکھو، ینظم نظم سے ہے اور یہ متعدی ہے، لیکن یہاں پر اس کا
जो मुद्दा ये है कि उस फ़ाइल को बयान करना है, फ़ाइल मुनज़्ज़म है ये बयान करना है। हुवा यंज़ुमु वो मुनज़्ज़म है, व अंतुम ला तंज़िमूना और तुम मुनज़्ज़म नहीं हो। यानी मतलब यहाँ पर भी फ़ेल को फ़ाइल को ज़िक्र किया है, मफ़ूल को ज़िक्र नहीं किया है। मफ़ूल को गोया मफ़ूल नहीं है, ऐसे इस तरह से लाया है। तो बस यहाँ पर यंज़िमु हो या ला तंज़िमू ना हो, यहाँ पर इस फ़ेल को नाजिल मंजिले लाजिम के करार दिया गया है। ऐ इंदहुल मुक़द्दरतु अला नज़्मी वलैसत इंदकुम। तो कहता है कि यहाँ पर वो फ़र्ज़ ये है कि वो मुनज़्ज़म है, वलैसत इंदकुम और ये तंज़ीम तुम्हारे पास नहीं है। इस मुद्दा को बयान करना है। मज़ीद और कोई मफ़ूल भी लाकर उसको बयान करना, उससे गरज का ताल्लुक़ नहीं है। गरज जो है वो फ़ाइल का हो है। फ़ाइल बयान करता है कि ये फ़ाइल क्या है, मुनज़्ज़म है और तुम्हारे पास ये तंज़ीम नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए कहता है कि हुवा यंज़ुमु व अंतुम ला तंज़िमून, वो मुनज़्ज़म है दर हाल कि तुम मुनज़्ज़म नहीं हो, ये बयान करना चाहता है। अब अगली सवाल जो है, मा हिया मर्तबतुल मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही का मर्तबा क्या है, ये कहाँ वाक़ होता है कलाम में। आया इसका जायगा इसका फ़ाइल पर मुक़द्दम होना है या फ़ाइल से मुअक्खर होकर आता है, क्या है इसका मर्तबा क्या है। तो फरमाते हैं कि अल अस्लु फ़िल मफ़ऊल बिही, असल मफ़ऊल बिही में ये है कि अन युअख्खिरा अनिल फ़ाइली, ये फ़ाइल से मुअख्खर होता है। मफ़ऊल जो है फ़ाइल से मुअख्खर होकर आता है। मा लम युफ़ज़ि ताख़ीरुहु अन्हु इला ख़िलालिन लफ़्ज़िय्यिन औ मानविय्यिन। अलबत्ता इस सूरत में ये फ़ाइल से मुअख्खर होता है कि इसकी ताख़ीर से कोई जो है लफ्ज़ी इख़लाल या मानवी इख़लाल जो है वो साबित ना हो, वो मौजूद ना हो। तो ऐसी सूरत में हम फ़ाइल को जो है मफ़ऊल को फ़ाइल से मुअख्खर करके ज़िक्र करते हैं कि इसके, लेकिन इसके ताख़ीर से कोई इख़लाल लफ्ज़ी वाक़ होता हो या इख़लाल मानवी होता हो, खलल कोई आते हो लफ्ज़न या मानन, तो ऐसे सूरत में फ़युक़द्दमु अलैहि, तो उस वक़्त जो है इस मफ़ऊल को फ़ाइल पर मुक़द्दम किया जाता है। कमा अरफ़्त फ़ी बाबिल फ़ाइल, जैसे कि आपने बाब फ़ाइल में वहाँ पर तफ़सील के साथ बयान किया। मतलब मिसाल के तौर पर अगर फ़ाइल में जो है एक ज़मीर हो और वो ज़मीर मफ़ऊल की तरफ लौट रही हो, तो ऐसे सूरत में इस मफ़ऊल का मुक़द्दम करना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर फ़ाइल को आप मुअख्खर करके मफ़ऊल को मुक़द्दम नहीं करेंगे तो ज़मीर का माबाद की तरफ, जो कि लफ्ज़ में भी मुअख्खर है और रुतबे में भी मुअख्खर है, की तरफ ज़मीर का पलटना लाज़िम आ जाएगा, जो कि कलाम अरब में जायज़ नहीं है। तो बस, या इसी तरीके से हम कहते हैं कि जहाँ पर फ़ाइल अगर महसूरुन फ़ी वाक़ हो जाए, अगर कहीं पर फ़ाइल महसूरुन फ़ी वाक़ हो जाए, तो ऐसे सूरत में फ़ाइल को मुअख्खर करके मफ़ऊल को मुक़द्दम करना वाजिब हो जाता है। जैसे मसलन आप कहते हैं कि मा ज़रबतु इल्ला ज़ैदन, नहीं मा ज़रबा यानी अमरन इल्ला ज़ैदुन, यानी अमर को नहीं मारा मगर ज़ैद ने मारा। मा ज़रबा अमरन इल्ला ज़ैदुन, यहाँ पर ज़ैद जो है फ़ाइल है, उसको मुअख्खर किया, इल्ला के बाद ले आया, चूँकि यहाँ पर हसर करना मकसूद है। अगर हम मतलब यहाँ पर अमर को मुअख्खर करेंगे जो मफ़ऊल है, तो उस वक़्त हसर मफ़ऊल के लिए होना लाज़िम आएगा, जो कि कलाम मुतकल्लिम के बरखिलाफ़ है। तो ऐसे कुछ मवारिद हैं जहाँ पर फ़ाइल को मुअख्खर करके मफ़ऊल को मुक़द्दम करना ज़रूरी होता है। क्यों? इसलिए कि अगर ऐसा करे तो खलाल लफ्ज़ी खलल आती है या मानवी खलल जो है यहाँ पर पेश आती है, जो कि सही नहीं है। अभी दूसरा जो बहस है यहाँ पर,
मता युहज़फ़ुल मफ़ऊल बिह, मफ़ऊल बिह कब हज़फ किया जाता है, यानी मफ़ऊल बिह का हज़फ करना कैसा है। तो कहते हैं कि मफ़ऊल बिह उस वक़्त हज़फ किया जाता है जब उसके ऊपर कोई करीने वाज़ेह और आशिकार उसके ऊपर दलालत करे, तो उस वक़्त उसके मफ़ऊल बिह को हज़फ किया जाता है। और ये हज़फ दो तरह से है। एक दफ़ा इसका हज़फ जायज़ है, यानी जब वो मुशख़्ख़स है, मालूम है, तो उस वक़्त उसके मफ़ऊल का हज़फ करना जायज़ है। और कभी कभार ये क्या होता है, वाजिब हो जाता है। कलाम अरब में ये वाजिब है मफ़ऊल बिह का हज़फ करना। ठीक, तो देखें मसलन कहता है युहज़फ़ुल मफ़ऊल बिह इज़ा दल्लत अलैहि करीनतुन बय्यिनतुन, मफ़ऊल बिह को हज़फ किया जाता है जब इसके ऊपर कोई आशिकार वाज़ेह करीना उस पर दलालत करे। वज़ालिका, और ये हज़फ जो है इम्मा जवाज़न, ये जायज़ी तौर पर ये हज़फ है, हज़फ जायज़ है। जैसे शरीब ज़ैदुन फसकरा, यानी ज़ैद ने पिया और मदहोश हो गया, सुकुर यानी मस्त हो गया। तो अब असल में क्या था, शरीब ज़ैदुन फसकरा शुरबल खमरी, यानी बस वो मदहोश हो गया शुरब खमर की वजह से। तो शुरबल खमरी ये मक़बूल है, लेकिन इसको यहाँ पर जायज़ से हज़फ किया, क्यों, इसलिए कि मालूम था। और इसी तरीके से व इम्मा वुजूबन, या ये जो है इसका हज़फ करना वजूब है। फिर मिसल, जैसे इस मिसाल में अफ़त्तु व अफ़ादनी अस्सिद्दीक़ु, यानी मैंने फ़ायदा दिया और मेरे सद्दीक ने मुझको फ़ायदा दे दिया। तो मैंने फ़ायदा दिया, अभी किसको फ़ायदा दिया, मफ़ऊल को यहाँ पर हज़फ किया है, यानी अफ़त्तुहु, मैंने उसको फ़ायदा दिया, ये था। हु ज़मीर है यहाँ पर, अफ़त्तुहु, ये हु ज़मीर को हज़फ किया गया है और ये हज़फ वाजिब है। तो अफ़त्तुहु व अफ़ादनी अस्सिद्दीक़ु, तो यहाँ पर जो है अफ़ादनी अस्सिद्दीक़ु, अफ़त्तु में हमारी शाहिद मिसाल है, जो कि असल में क्या था, अफ़त्तुहु था, यानी मैंने फ़ायदा दिया उसको और उसने, सिद्दीक ने, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ायदा दे दिया। ठीक, तो यहाँ पर इस मफ़ऊल का हज़फ करना वाजिब है। और इस एक फ़ायदा यहाँ पर बयान करते हैं, कुछ दो फ़ायदे हैं, इनको यहाँ पर बयान करते हैं। अवलन ये कि ये मफ़ऊल बिह जो है इसका ज़िक्र करना ये सज़ावार है, शाइस्ता ये है कि मफ़ऊल बिह को ज़िक्र किया जाए। क्यों, इसलिए कि ये माना में मकसूद है, माना में यानी मकसूद है, माना में कस्द है वो, तो लिहाजा उसका ज़िक्र क्या है, शाइस्ता है। क्यों, इसलिए कि जब ज़िक्र करेंगे तो माना इतमाम फ़ायदा को तमाम करेगा ये, चूँकि ये नहीं होगा तो फ़ायदा तमाम नहीं होगा, तो लिहाजा इसका ज़िक्र करना शाइस्ता है, सज़ावार है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभार उसको हज़फ किया जाता है, इसलिए कहते हैं कि अल मक़ूल बिह खलीकुन, खलीक यानी मतलब सज़ावार, शाइस्ता। ज़िक्र करने के साथ क्या है, ये मक़ूल बिह का ज़िक्र शाइस्ता है। क्यों, इसलिए कि लिकौनिही मक़सूदन फिल माना, चूँकि माने में ये मकसूद है, लिइतमामिल फ़ायदा को तमाम करने के लिए इसका ज़िक्र करना माने में मकसूद है। लेकिन इसके बावजूद वलाकिन्नहु कद युहज़फ़ु, गाहे औक़ात इसको हज़फ किया जाता है, इज़ा कान मारूफ़न, जब वो मुअय्यन होता है, जब मुशख़्ख़स है, मारूफ़ है, मुशख़्ख़स है, तो ऐसे सूरत में उसको ज़िक्र करने से हज़फ किया जाता है, ताइन कि मुशख़्ख़स है, मालूम है कि इसका मफ़ूल ये है और वो मफ़ूल का हज़फ करना क्या है, सही है। क्यों, इसलिए कि कलाम अरब में इख्तिसार मतलूब है, तो इख्तिसार के लिए जो है उस मफ़ूल का हज़फ करना जायज़ है या वाजिब है। कमा ज़ाकान मारूफ़न कमा फी, जैसे इस मिसाल में देखो, शरीब ज़ैदुन फसकरा, तो शरीब ज़ैदुन, ज़ैद ने पिया और मदहोश हो गया, तो ये सकरा के बाद क्या था, यानी शुरबल खमरी, ये शुरबल खमर जो था ये मफ़ूल था जिसको हज़फ किया गया है और वो मुअय्यन था। और इसी तरीके से वराअतिल माशियतु, यानी मतलब
पैदल चलने वालों ने रियायत की, यानी किस चीज़ की रियायत की? अल-उशुबा। अल-उशुबा ये मफूल था, यानी मतलब चारे की, घास की, सब्ज़ी की, जो सब्ज़ है एक किस्म की जो है चारा है, उस चारे की जो है क्या की, उन्होंने रियायत की, माशिया ने उसकी रियायत की। घोड़सवारों ने जो है आए लेकिन उन्होंने उसको ख़राब नहीं किए। अल-उशुबा ये जो है उस मखसूस चारा है, उसको उन्होंने रियायत की, उसको ख़राब नहीं किया। तो यहाँ पर ये अल-उशुबा मफूल है, राअतिल माशियतु, ये माशियतु राअत का फ़ाइल और अल-उशुबा उसके लिए मफूल है जो कि हज़फ हो गया है यहाँ पर मालूम होने की वजह से। वक़द युहज़फ़ु एज़न तलबन लिल इख्तिसारी, कभी कभार इख्तिसार की खातिर, चूँकि मफूल बी को हज़फ करते हैं इख्तिसार के लिए, यानी मुख्तसर कलाम मुख्तसर और वो है कम हो, इसलिए जो है इसको हज़फ कर देते हैं। चूँकि अरब वाले आपको पता है कि इनकी हुरूफ तहजीबी बहुत कम और उसके अल्फाज भी कम, और इसी तरीके से ये जो हैं इख्तिसार के बड़े खां हैं, तो हर जगह जहाँ पर कोई ऐसा नुक्ता होता है तो उसको हज़फ करते हैं। तो मफूल बिह भी इख्तिसार की खातिर हज़फ किया जाता है। जैसे कि मिसाल लेता है यहाँ पर यग़नहु यग़फिरुल्लाहु लिमन यशाउ, तो यहाँ पर यग़फिरुल्लाह अज़्ज़ुनूबा, ये जुनूब था, यानी अल्लाह ने बख्शिश किया, मग़फ़िरत की, किसकी? गुनाहगारों की। अल-जुनूबा, ये जुनूब यहाँ पर क्या है? मफूल है, इसको हज़फ किया। क्यों? इसलिए कि इख्तिसार के लिए, यानी मुख्तसर कलाम को मुख्तसर करने के लिए मफूल बी को यहाँ पर हज़फ किया। यग़फिरुल ज़ुनूबा, यानी यग़फिरुल्लाहु अज़्ज़ुनूबा, इस तरह था। इला गैर ज़ालिका मिनल एतबारात अल्लती तराहा बित्तफ़सील फ़ी कुतुबिल बयान, और इसी तरीके से आप और मवारिद हैं और एतबारात हैं जहाँ पर उस मफूल को इख्तिसार की खातिर हज़फ किया जाता है, जो आप कुतुब बयान यानी इल्म बयान की जो किताबों में, तफसीली किताबों में आप वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इसका मोरिद नहीं है, लिहाजा इससे ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। सिर्फ इतना आपको बता दिया कि इख्तिसार के खातिर मफूल बी को हज़फ किया जाता है। और दूसरा नुक्ता जो फ़ायदा है वो ये कि कद युहज़फ़ु आमिलुल मफ़ऊल बिही इम्मा सिमाअन, तो कहते हैं कि अब हमारे यानी इस मफ़ऊल बी की बात नहीं है, अब मफ़ऊल बी का जो आमिल है, अब वो आमिल या उस मफ़ऊल बी को नस्ब देने वाला आमिल, या वो फ़ेल होगा या इसम फ़ाइल होगा, या वो क्या होगा जो है मस्दर होगा, ये जो हैं कभी कभार इनको हज़फ किया जाता है। वक़द युहज़फ़ु आमिलुल मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बी के आमिल को, उसके जो मंसूब नस्ब देने वाले को हज़फ किया जाता है। ये हज़फ भी दो तरह से है, एक दफ़ा सिमाअन है। सिमा जो आपको पता है कि सिमा का मतलब क्या है, यानी कलाम अरब में इस तरह सुना है, तो लिहाजा हम इसी के मुताबिक क्या करते हैं, अमल करते हैं, वो उन मवारिद में हम हज़फ कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार ये कयासन है, कयास है। कयास का माना क्या है? कयास का माना ये है कि कानून है, ऐसा हम भी अगर अपने कलाम जब उस कानून के मुताबिक हम चलाएं तो वहाँ पर हम भी हज़फ कर सकते हैं। तो लिहाजा कहता है इम्मा सिमाअन का कौल का, जैसे आपका कौल है अहलन व सहलन, यहाँ पर अहलन व सहलन असल में क्या था? आतैता अहलन व वतैता सहलन, यानी आप अपने घर आए हैं और आपने यानी नरम ज़मीन के ऊपर पाँव रखा है, यानी मतलब ये अपना घर समझे, अपने घर में जिस तरह आप खुला डुला होकर रहते हैं, यहाँ पर भी ऐसा रही है। तो अहलन व सहलन असल में क्या था? आतैता अहलन व वतैता सहलन, तो आतैता फ़ेल को हज़फ किया और इधर सहलन में वतैता को हज़फ कर दिया, दो फ़ेल है वो दोनों को हज़फ कर दिया। और ये व इम्मा कयासन, और ये कयासी है। और कयास दो तरह से है, एक दफ़ा जायज़न है, एक दफ़ा वजूबन है। कयासन वज़ालिका यकूनु जवाज़न,
اور کبھی کبھار یہ جائز ہے حذف کرنا، قیاس ہے اور جائز ہے۔ جیسے فی جواب الاستفہامی، جیسے استفہام کے جواب میں اس کا فعل کو حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کقول کا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زیدن کہتے ہیں، فی جواب من ضربتا، اس شخص کے جواب میں جو آپ سے کہتے کہ آپ نے کس کو مارا تھا، من ضربتا، آپ نے کس کو مارا۔ چونکہ یہاں پر وہی فعل جو ہے سوال کرنے والے کے زبان سے جاری ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں پر جواب دینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس فعل کو دوبارہ دہرائے اور کہے ضربت زیدن کہے، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ کیا کہے گا وہاں پر؟ وہ کہے گا زیدن، زیدن کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ضربتہ میں، من ضربتہ میں، ضربتہ خود وہاں پر فعل موجود ہے، تو لہذا جواب دینے والا ضربت زیدن کہنے کے بجائے کہے گا زیدن، خالص زیدن کہے گا۔ اور یہ وجوباً کا اوقات جو ہے واجبی طور پر یہ منصوب ہوتا ہے، نصب دیتا ہے، حذف کیا جاتا ہے اس فعل کو، فعل کا حذف واجب ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم باب اشتغال میں یا باب ندا میں یا باب اختصاص میں ہم پڑھیں گے۔ جیسے باب ندا میں مثلا آپ کہتے ہیں یا عبداللہ، عبداللہ در حقیقت میں کیا ہے؟ ادعو عبداللہ۔ دیکھو ادعو، یہ یا قائم مقام ہے، نائب ہے ادعو سے، اور وہ فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور عبداللہ اس کے لیے مفعول ہے۔ یا اختصاص کے لیے جیسے مثلا یا معشر النحویین، یا معشر النحویین، ہاں معشر النحویین، یا نہیں لائیں، معشر النحویین، یعنی معشر النحویین کو کس نے نصب دے دیا؟ فعل نے۔ اور وہ فعل کون ہے؟ وہ فعل جو ہے اخص معاشر النحویین یا نخص معاشر النحویین، ہم یعنی نحوی معاشرے سے یہ مسئلہ مخصوص ہے، ہم اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو معاشر النحویین کے لیے جو عامل ہے، اس کا جو فعل ہے جس نے اس کو نصب دے دیا ہے، وہ نخص ہے، جو کہ باب اختصاص میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ اسی طریقے سے باب ندا میں، باب اشتغال میں ان کی جو ہے مثالیں آئیں گی، انشاءاللہ وہاں پر ہم توضیح دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔